everyone. In today's English class, we are going to read and understand the first poem of your first flight book, Dust of Snow. This is a very short and beautiful poem written by Robert Frost. Robert Frost was an American poet. He was a very great nature poet. He was actually a poet laureate of the United States. He was the only poet who has been awarded the Pulitzer Prizes, the prize which is given for great literatures. All his poems, the subject of most of his poem was nature. He used to depict nature very beautifully in his poem. Not only that, but through the nature symbols, he used to convey important messages to the society. His poem used to be romantic but did convey a great philosophical themes. Now let us read and understand this poem and see what the poet want to teach us through this poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued. So you have seen it's a very short poem of just 2 stanzas. First we'll understand the literate meaning of what the lines want to say. The way a crow, see how the poem opens. The poem opens, doesn't have any particular background. Simply इसमें यही कहा है the poet was standing under one hemlock tree और वहाँ से एक उसके ऊपर एक crow बैठा हुआ था. Crow was sitting on that and the crow was sitting in the tree. He shook down on me. What the crow did? Shake. Second form of shake is shook. ठीक है, उसने हिलाया and उसने क्या गिराया उनके ऊपर? Shook down. Shook down means to shake down something. कुछ गिराना नीचे. The dust of snow from a hemlock tree. Hemlock tree के the crow was in the hemlock tree and from there hemlock tree was fully covered with snow. और उसने जैसे ही वो पेड़ की किसी ब्रांच को हिलाया तो उनके ऊपर सारा स्नो जो है वो पोएट के ऊपर गिर गया. Has given my heart a change of mood and just as he did that, जैसे ही क्रो ने उनके ऊपर स्नो गिराया उनका जो उनके हार्ट उनका जो मूड चेंज हो गया. उनका पहले जो मूड था ही वॉज इन अ वेरी ग्लूमी सैड मूड. हेमलॉक ट्री के नीचे वो बैठे थे. ही वॉज इन अ वेरी सैड मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई ड्यूड. उनका मूड चेंज हो गया. हिज मूड बिकेम हैप्पी अगेन. ही अगेन बिकेम रिफ्रेश्ड. और जैसे उनका मूड अच्छा हो गया तो उन्होंने फिर अपने जो डे वेस्ट, जो रिग्रेट में जो डे वेस्ट हो रहा था, रिग्रेट क्या होता है? इन रिमोर्स मूड, पछतावा, पश्चाताप के कुछ मिस्टेक उनकी लाइफ में हो गई होगी और वो उसको रिग्रेट करके बैठे थे और उससे वो जो जैसे उनका मूड चेंज हुआ तो वो कुछ डे पार्ट ऑफ द डे उनका वेस्ट होने से बच गए. ओके, दिस इज द इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स. ये इनका जो ये वर्ड्स क्या कहना चाहते हैं. नाउ थ्रू दीज वर्ड्स व्हाट द पोएट वांट्स टू कन्वे, वो क्या हमको बताना चाहते हैं, व्हाट डज इट वांट टू टीच. ठीक है, वो बहुत सिंपल वर्ड्स का उन्होंने यूज़ किया है और ये इन्होंने ये बताया है कि इवन अ स्मॉल इंसिडेंट इन लाइफ, छोटे से छोटा कोई इंसिडेंट, कोई घटना ऐसी हो जाती है, मे प्रूव टू बी ऑफ वेरी लार्ज सिग्निफिकेंस, वेरी लार्ज इम्पोर्टेंस. ठीक है, the poet was upset in the beginning. He was in a sad mood, even in a gloomy mood. But the small incident of falling of the snow, it just changed his mood completely. Okay, now he feels relaxed. He feels happy. He feels relieved from his depression. He feels relieved from his sorrow. Okay, and now this has resulted in saving his day from being wasted. Alright, now we'll understand some facts about the poem from these notes. Okay, now see what I've written here. It's a poetry, Dust of Snow, written by Robert Frost. Already I told you
He was an American poet. He was a very great nature poet, very famous for romantic but philosophical poems. What are philosophical? Philosophical are the ones which convey the deep meaning of something. Okay, they are connected with, they teach some lesson of life. Then it is a poem of 8 lines, that is 2 stanzas are there. Very simple in structure yet very poignant in content. Poignant means what? Poignant means the one which is having deep meaning. That is what philosophical meaning जो मैंने पहले बोला, that means poignant. It is having some logical meaning in that. It has got some educative value. कुछ सिखाता है वो हमको, कुछ lesson देता है. ठीक है. Now ये इनका कंटेंट है पोएम का. ग्लूमी मूड इन द बिगिनिंग. इन द बिगिनिंग द पोएट वॉज वेरी सैड, ही वॉज वेरी डार्क मूड, ही वॉज इन एंग्जाइटी. कुछ टेंशन थी, कुछ चिंता थी. सपोज हो सकता है वो सुसाइड करने की सोच रहे हो, या ही वॉज सच अ डार्क मूड कि वो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. यूज़ ऑफ नेचर सिम्बल्स. फिर पोएट ने कुछ नेचर सिम्बल्स का यूज़ किया. और नेचर सिम्बल्स क्या है? क्रो, हेमलॉक ट्री, स्नो. नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. तो जैसे ही नेचर ने कुछ वर्क किया, कुछ नेचर के कुछ एलिमेंट्स ने कुछ एक्शन किया, देन उससे उनका जो मूड है, वो जो नेगेटिव थॉट्स थे उनके, वो चले गए, बिकेम पॉजिटिव. द एनवायरनमेंट ऑफ द पोएम बिकेम पॉजिटिव. ठीक है. अब पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज़ हुए हैं? व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस? पोएटिक डिवाइसेस मतलब हम जैसे लैंग्वेज को रिच बनाने के लिए जो लिटरेट्स मतलब लैंग्वेज को रिच बनाने के लिए जो पोएट्स होते हैं या राइटर्स होते हैं, दे यूज सर्टेन ऑर्नामेंटल कंसेप्ट्स, जिससे वो आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी हो जाए. जैसे हिंदी में आपके अलंकार होते हैं, तो उस तरह से इसमें भी कुछ पोएटिक डिवाइसेस होते हैं. इसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं? सिम्बॉलिज्म यूज़ हुआ है. सिम्बॉलिज्म क्या है? सिम्बॉलिज्म मतलब किसी एलिमेंट को, किसी चीज़ को सिंबल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है. किसी थॉट के या किसी आइडिया के सिंबल के रूप में यूज़ किया जाता है, किसी एक्ट के सिंबल के रूप में यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे सिंबल क्या है? क्रो एंड हेमलॉक ट्री. ये नेगेटिव सिंबल्स हैं. नेगेटिव सिंबल्स कि उन्होंने स्टार्टिंग में पोएट को बताया गया है कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर क्रो बैठा हुआ है. सो बोथ उस समय मूड कैसा था? नेगेटिव था. सो दे आर नेगेटिव सिम्बल्स टू क्रिएट ग्लूमी एटमॉस्फेयर. ये बताने के लिए कि आसपास, पोएट के आसपास सब कुछ भी अच्छा नहीं है. ही इज़ फीलिंग वेरी डार्क, ही इज़ फीलिंग वेरी सैड, ही इज़ फीलिंग वेरी ग्रीव्ड, सोरोफुल फील हो रहा है उनको. ब्लैक क्रो क्रो किसका सिंबल है? इज सिंबल ऑफ बैड ओमेन. बैड ओमेन मतलब अपशगुन. जैसे हम क्रो को अच्छा नहीं मानते, क्रो को अच्छा शगुन नहीं माना जाते. क्रो प्लेजेंट नहीं होता है, उसकी वॉइस जो होती है बहुत हार्श होती है. क्रो को कोई पसंद नहीं करता है. सो इज सिंबल ऑफ बैड ओमेन. ठीक है. अपशगुन का सिंबल होता है. सोरो, दुख का सिंबल होता है. ठीक है. अनप्लेजेंट थिंग, ही इज़ नॉट लाइकेबल, कोई पसंद नहीं करता है. देन पॉइजनस हेमलॉक ट्री. ये जहरीला पेड़ होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है. कॉनिफरस पेड़ होता है, कोन शेप का होता है, और उसके वाइट फ्लावर्स होते हैं. इट इज़ अ सिंबल ऑफ डिप्रेशन. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिक वैल्यू. टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस, जहरीला होता है ये पेड़, और इसकी वजह से वो किसका सिंबल माना जाता है? डिप्रेशन का, सैडनेस, डेथ, ग्लूम. ओके. इस पॉइजन किसका सिंबल होता है? डेथ का. ऑलराइट. प्योर वाइट कोल्ड स्नो. स्नो किसका सिंबल है? प्योर वाइट कलर का स्नो. स्नो देख के हम सब खुश हो जाते हैं. स्नो देखते ही मूड चेंज हो जाता है. ठीक है. स्नोई एरियाज़ में लोग क्यों जाते हैं? पिकनिक स्पॉट्स क्यों उनको वो पसंद होते हैं? क्यों? बिकॉज इट्स अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर. तो इट इज़ अ सिंबल ऑफ जॉय, एनर्जी. जॉय का सिंबल है ये, पॉजिटिव सिंबल है. ठीक है. सो 2 सिंबल्स. सिंबलिज्म में उन्होंने दो तरह के सिंबल्स यूज़ किए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव सिंबल में तो स्नो आ गया, और नेगेटिव सिंबल में क्रो और हेमलॉक ट्री. ओके. और क्या पोएटिक डिवाइस है? एजोनेंस. एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस एक तरह का अलंकार है जिसमें वॉवल साउंड रिपीट होते हैं. यानी सेम वॉवल साउंड जो होता है, अ आई ई का जो साउंड होता है वो रिपीट होता है. एक ही लाइन के अंदर जो सेम साउंड रिपीट होता है, तो उसको बोलते हैं एजोनेंस. दैट पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड एजोनेंस. इसमें एग्जाम्पल है, ओ रिपीट हो रहा है. कहाँ पे ओ रिपीट हो रहा है? शुक डाउन ऑन मी. सी द ओ का साउंड रिपीट हुआ है बार बार.
देन देर इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन सेम है, एजोनेंस में वॉवल का साउंड रिपीट होता है, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट होता है. जो हमारे क्या ख ग घ हो वो कॉन्सोनेंट्स है, उनका साउंड अगर स्टार्टिंग साउंड रिपीट होता है तो वो एलिट्रेशन माना जाता है. यहाँ पे एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है ह का साउंड यानी एच का साउंड, वो है हैज़ गिवन माई हार्ट. सो वो ह का साउंड रिपीट हो रहा है. अच्छा, राइम स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इन ऑल द पोइट्री. राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम अंडर जो लास्ट वर्ड होता है उसकी जो साउंड होती है, दैट साउंड सेम साउंड कहाँ रिपीट हो रही है. अब जैसे यहाँ हमारी पोइट्री के अंदर क्रो, ओके, क्रो एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द ए साउंड. अब ये साउंड चेंज हो गया, यहाँ पे मी, तो ये बी साउंड है, दिस इज बी साउंड. ऑलराइट, अभी सेम जहाँ जहाँ ये साउंड होगा वहाँ पे हम ए नाम देंगे फिर से. तो स्नो, दिस इज सेम लाइक दैट, तो इसमें ए का साउंड होगा. फिर ये मी का जैसा साउंड, जहाँ भी मी का साउंड रिपीट होगा वहाँ पे हम बी सिंबल देंगे. तो हेमलक ट्री, दिस इज ट्री, ट्री एंड मी आर इन राइम, सो वी विल गिव द नेम बी सिंबल, यहाँ पे बी देंगे. ठीक है, ओके. अब ये सेकेंड स्टांजा है, सेकेंड स्टांजा में फिर ये चेंज हो जाएगा. तो हार्ट एंड पार्ट दीज आर सेम, तो ये ए हो गए. मूड एंड रूड आर सेम, सो बी हो गए. सो व्हाट इज द राइम स्कीम? ए बी. ठीक है, हर स्टांजा में ये लास्ट वर्ड्स हमको अलग अलग देखने होते हैं. तो यहाँ पे क्रो और स्नो है, मी और ट्री है, दैट मेक्स ए बी. एंड हियर हार्ट एंड पार्ट इज ए एंड मूड एंड रूड साउंड जो है वो बी साउंड है. सो व्हाट इज द राइम स्कीम? राइम स्कीम यहाँ पे है ए बी. ऑलराइट, नाउ द पोएट वांट्स टू कन्वे सम इम्पॉर्टेंट मैसेज इन द पोएम. वो मैसेज क्या है? व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट ही वांट्स टू कन्वे हियर? Robert Frost, through his poem, tries to convey that good or bad, whatever it is, लाइफ में जो भी हमको दिखता है, जो भी हमको फेस करना पड़ता है, इट इज़ इन आवर माइंड. वो सब हमारे माइंड में होता है. जो सिचुएशन होती है, माइंड एक ही पोजीशन, एक ही चीज़ को दो लोग अलग अलग व्यू से देखते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है. तो क्यों होता है? बिकॉज देयर थॉट्स आर डिफरेंट. कोई पॉजिटिव सोचता है उस चीज़ में, कुछ कोई नेगेटिव. एवरीथिंग इज इन आवर माइंड. एवरी बैड सिचुएशन हैज़ समथिंग पॉजिटिव इन इट. ओके, जैसे हम कहते हैं एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब हमेशा होप रहनी चाहिए. कुछ भी पोजीशन हो जाए, होपफुल रहना चाहिए कि नहीं, कभी तो ये पोजीशन चेंज होगी, कभी तो हमारी लाइफ चेंज होगी. समथिंग पॉजिटिव इन इट. इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड फॉर द सिचुएशन, वी शुड ट्राई टू फाइंड द पॉजिटिविटी इन इट. हमको जो भी हमारे सिचुएशन हम हार्डशिप जब फेस करते हैं तो हमको दुखी नहीं होना है, सैड नहीं होना है, उसको ब्रेवली फेस करना है. और वो ब्रेवली हम कब फेस करते हैं? जब हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होती है. हमको उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए. ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक बनना चाहिए कि कभी लाइफ में वापस अच्छा होगा. इन इट ही ऑलवेज कन्वेज दैट लिटल थिंग्स मे ब्रिंग. ही ऑल्सो कन्वे, वो ये भी बताते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ भी जो हमको इनसिग्निफिकेंट लगती है वो भी कभी कुछ बड़ा चेंज ला सकती है. इट कैन ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन आवर लाइफ एंड हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम बिग थिंग्स ओनली. सो वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एवरी टाइम. हमको हमेशा आशावादी होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए. क्योंकि हो सकता है कोई छोटी सी हमको इनसिग्निफिकेंट चीज़ लगे, लेकिन वो लाइफ में ऐसा कुछ काम कर जाए जिससे हमारे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला ले, बहुत बड़ा चेंज आ जाए. ऑलराइट, नाउ वी विल सी सम क्वेश्चन आंसर्स दैट मे बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम फ्रॉम दिस पोएम. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है? व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड? ठीक है, वो मूड कैसे चेंज हो गया? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? सबसे पहले तो ये इसका आंसर रहेगा, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स अ फाइन पार्टिकल और फ्लैक्स ऑफ स्नो. स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे टुकड़े, उनको डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं. द सडन शार इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो की बौछार हुई, बारिश हुई, ऊपर से गिरी. डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड. ये इसका आंसर है. व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड? मूड कैसे चेंज हो गया? द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस. पहले वो बहुत दुखी थे, ही वॉज ग्लूमी, ही वॉज इन अ ग्लूमी एंड ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन ऑफ एंग्जाइटी. चिंता में थे, टेंशन में थे, वरी में थे. तो हैप्पीनेस में चेंज हो गया. टू हैप्पीनेस ही फेल्ट रिफ्रेश्ड. अब उनको अच्छा लग रहा है. ही फेल्ट रिजुविनेटेड, रिफ्रेश फील हुआ.
and wanted to enjoy and make use of the rest of the day. अब वो चाहते थे कि जो उन्होंने निराशा में, डिप्रेशन में जो अपना पूरा आधा टाइम निकाल दिया था, अब वो आगे का टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे, उसका कुछ वो ऐसा प्रोडक्टिव यूज़ करेंगे. He will make some positive use of it. The part of which he had already wasted in regret. पश्चाताप में, पछतावे में, दुख में उन्होंने बैठ के वो दिन वेस्ट कर लिया था. जो बचा हुआ टाइम था उसको हम वो अब बचा के रखेंगे, उसको वो कुछ अच्छा इसका यूज़ करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the meaning, what is the underlying comment, that is the message. इस पोएम में क्या मैसेज है? इससे पहले भी हमने इसके जो फैक्ट्स किए तो उसके अंदर भी मैसेज आ गया था. वही मैसेज लिखना है आपको. मेड बाय द पोएट थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. मैसेज क्या है? In the poem Dust of Snow, the poet wants to convey that sometimes certain moments or actions which are simple have larger significance. कुछ चीज़ें जो हमको सिंपल दिखे उनकी वैल्यू बहुत होती है, उनकी इम्पोर्टेंस हो सकता है कभी बड़ा हो जाए, वो कुछ बड़ा काम कर दे. They can change the mood or life of a person. ठीक है. छोटी सी चीज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बहुत दुख में बैठे हुए हैं, हमारा मूड अच्छा नहीं है, एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, वो इतना प्लेफुल होता है कि उसको देखते ही उसकी जेस्चर्स, उसकी हरकतें देख के हम खुश हो जाते हैं, हमारा मूड चेंज हो जाता है. तो ये एक छोटी सी बात थी, इनसिग्निफिकेंट. बच्चा कुछ नहीं जानता, उसने ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग डेलिबरेटली, लेकिन उसने आपका मूड चेंज कर दिया. तो ऐसे बहुत सारी ऐसी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिससे बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं. दे कैन चेंज द मूड ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन. द वे अ क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन अ पोएट इंस्पायर्स एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थाट्स. जैसे उसने ऊपर से जब स्नो गिराया तो वो कोल्ड स्नो जैसे उनकी बॉडी को टच किया, सॉफ्ट स्नो जैसे उनकी बॉडी को टच किया, उनको एकदम से ही बिकेम अलर्ट. वो उनको लगा कि मुझे भी अपनी ये जो डिप्रेशन थाट्स हैं, जो डिस्करेजिंग थाट्स हैं, उनको हटा देना चाहिए. सो वो उनको उससे इनकरेजमेंट मिला अपनी लाइफ में चेंज लाने का, टू बिकम चीयरफुल बनने का, हैप्पी बनने का, एंड डू समथिंग यूजफुल, कुछ प्रोडक्टिव काम करने का उनका फिर मूड हो गया. ठीक है. दिस इज़ हाउ इट हैज़ चेंज्ड. तो ये मैसेज है, दिस इज़ अ मैसेज कि छोटी से छोटी चीज़ भी इनसिग्निफिकेंट नहीं होती है और इंसान को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बनना चाहिए. ह्यूमन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक इन देयर लाइफ बिकॉज पॉजिटिव चेंज मे कम इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What aspects of nature do the crow and hemlock represent? ये किसके सिंबल है? वो भी हमने फैक्ट्स में कर लिया था. Crow is a black, कोई ब्लैक कलर का ब्लैक हार्श वॉइस्ड बर्ड. ऐसा बर्ड है जिसको कोई पसंद नहीं करता. अगर पोइट्स को पोइट्री लिखनी भी है तो वो कुकू के ऊपर लिखेंगे, पिकॉक के ऊपर लिखेंगे, स्वान के ऊपर लिखेंगे, लार्क के ऊपर लिखें. ऐसी पोइट्रीज बहुत सारी हैं जो अच्छे अच्छे सुंदर बर्ड्स के ऊपर, जिनकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं उनको लेके, उनके ऊपर उनकी ब्यूटी के लिए या उनकी स्वीट वॉइस के लिए उनके ऊपर पोएट्री लिखी गई है. यहाँ पे इन्होंने क्रो, ही हैज़ रिटन अ पोएट्री ऑन क्रो एज अ सब्जेक्ट. ब्लैक हार्श वॉइस बर्ड. हेमलक ट्री इज़ अ ट्री विथ पॉइजनस बिटर फ्रूट. और हेमलक ट्री क्या है? एक ऐसा पेड़ है जिसका फ्रूट जो होता है बहुत ही कड़वा होता है, बिटर होता है. वो पॉइजनस ट्री है. उसका फ्रूट खाते ही मर जाते हैं, जो खाने वाला होता है वो मर जाता है. तो इतना पॉइजनस है वो. बोथ आर अगली एंड नॉट ब्यूटिफुल. इनके अंदर कोई ब्यूटी नहीं है कि उनको पोएट्री में यूज़ किया जाए. दे सिम्बलाइज द डार्क, डिप्रेसिव, सॉरोफुल एंड बिटर साइड ऑफ नेचर. वो नेचर की सुंदर साइड को, ब्यूटीफुल साइड को नहीं बताते हैं. दे शो द अनप्लेजेंट साइड ऑफ नेचर. तो किसके सिंबल है? डार्क, डिप्रेसिव, सॉरोफुल एंड बिटर साइड ऑफ नेचर. ओके. ये क्रो और हेमलक ट्री के बारे में. हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. इसमें उन्होंने नेचर को कैसे इम्बाइब किया है, कैसे उन्होंने नेचर को यूज़ किया है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ नेचर लवर. वो नेचर पोएट है. वो उनकी सारी पोएम्स में नेचर ही सब्जेक्ट होता है. एलिमेंट्स ऑफ नेचर को वो यूज़ करते हैं अपनी पोएम्स में. He has used the elements of nature in the poem Dust of Snow very beautifully to explain a simple philosophical thought. एक आइडिया ऑफ लाइफ को उन्होंने हाईलाइट किया है थ्रू द नेचर सिम्बल्स. द क्रो एंड द हेमलक ट्री आर एसोसिएटेड विद बैड ओमेंस. बैड ओमेन अपशगुन माना जाता है. फेयर, डर,
डर का सिंबल माना जाता है, क्योंकि जो भी इंटॉक्सिकेटेड चीज़ होती है वो डर देती है, पॉइजनस चीज़ें होती है वो डर देती है, उससे इंसान दूर भागता है। डिप्रेशन, ग्लूम, ठीक है, डार्कनेस, ग्लूम, डेथ का सिंबल है, पॉइजन से डेथ हो जाती है। एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स, जो भी दुनिया में बुराइयां हैं उन सब के सिंबल्स हैं ये हेमलॉक ट्री, क्रो। बट फ्रॉस्ट हैज़ shown them as the source of cheer, joy and refreshment in the form of dust of snow. ठीक है, थ्रू दिस पोएम फ्रॉस्ट ने बता दिया है कि ये वर्ल्ड, दुनिया के बाकी लोगों के लिए ये सारी अनप्लेजेंट, ये दोनों अनप्लेजेंट हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कभी ना कभी वो भी लाइफ में कुछ किसी के काम आ सके, वो भी लाइफ में कभी पॉजिटिविटी डाल सके किसी की। ये इस तरह से इन्होंने इसका ये यूज़ बताया है। विच इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय एंड एनर्जी, उन्होंने कहा कोई चीज़ दुनिया में बेकार नहीं होती है, ठीक है, इवन नेगेटिव चीज़ होती है वो भी पॉजिटिविटी क्रिएट करने में हेल्प कर सकती है। बट फ्रॉस्ट हैज शोन देम एज अ सोर्स ऑफ चीयर, जॉय, रिफ्रेशमेंट इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। अब वो रिफ्रेशमेंट कैसे लाया उन्होंने? इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? चीयर, वो चीयर लाता है, एक प्लेजेंट फीलिंग लाता है, इट इज़ वेरी लाइकेबल थिंग, ठीक है। वो डस्ट ऑफ स्नो सबको बहुत पसंद होता है, देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। तो इस फॉर्म में उन्होंने, हेमलॉक ट्री नहीं होता तो वो कहाँ से शेक करता, ठीक है, और क्रो ने शेक किया, नहीं तो वो हेमलॉक ट्री के ऊपर ही स्नो पड़ा रहता, वो शेक करने से वो इफेक्ट आया है। तो इसके लिए दोनों काम आए, हेमलॉक ट्री और क्रो। विच इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय एंड एनर्जी, ये जो स्नो है वो किसका सिंबल है? जॉय और एनर्जी का। थ्रू these elements, ये जो elements हैं, these elements of nature, elements मतलब parts of nature, he brings very strong message that everything around us is useful and beautiful। उन्होंने बोला कोई भी चीज़ useless नहीं होती है, कोई भी चीज़ कभी भी काम आ सकती है, जिसको हम अगली कहते हैं, अगली चीज़ें भी कभी कभी ब्यूटी को डेमोन्स्ट्रेट कर देती है, ठीक है। ओके, The next last question is why was the poet standing under the hemlock tree? वो क्यों खड़े थे वहाँ पे? ये तो हमको ऐसे स्टार्ट में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया, जस्ट पोएम हैज बीन ओपनड एज, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि वो मूड उनका खराब था, क्योंकि उन्होंने बाद में लास्ट में बोला है कि उनका मूड रिफ्रेश हो गया, यानी जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे तो उनका मूड अच्छा नहीं था। द पोएट वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस, ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ सॉरो एंड ग्लूम, उनकी लाइफ में बहुत डार्कनेस था, दुख था। एज ही वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स ही हैपन टू बी स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, मतलब वो जब इस तरह से थॉट्स में अपने विचारों में खोए हुए थे, अपनी लाइफ में रिग्रेट फील कर रहे थे, कुछ पश्चाताप कर रहे थे, कुछ डीप थॉट्स कर रहे थे, तो ही हैपन टू बी स्टैंडिंग, तो धीरे धीरे आके वो उसके नीचे, उनको पता नहीं चला वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हो गए। ये सिंबॉलिक है, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए, मतलब ये पोएट ये बताना चाहता है कि वो ग्लूमी मूड में थे। द इंसिडेंट वॉज नॉट प्री प्लान, ये कोई सोच समझ के वहाँ नहीं आए थे, लेकिन ये वहाँ सोचते सोचते वहाँ आके नीचे खड़े हो गए थे। ऑल राइट, सो दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, बहुत ही शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं, तो वो इजीली यू कैन आंसर दैम। वन पेज इन द PDF of along with these answers I am giving for extract based questions, you can read those questions from that and note down them in your notebooks. All right, it's all for today. Thank you very much. Have a happy learning.